Congrats. Today we will discuss the power system. First, the subject code is the KMali 501. My name is Ashwini Kumar, PhD scholar at Gautam Buddha University, Greater Noida. The unit covers the generation, introduction and the load curve. But in this lecture, we will cover the unit second, transmission and distribution of electric power first. For this single line diagram of the power system, choice of transmission voltage, different kind of supply. Further, we will discuss configuration of transmission line, corona, and the effect of corona power loss, advantage and disadvantage. After that, we will discuss further video परफॉर्मेंस ऑफ लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन्स और ट्रांसमिशन लाइन लेवल की बात करते हैं। ट्रांसमिशन लेवल क्या है हमारा? It has higher voltage level than the sub-transmission system. It supplies only large block of power to bulk power stations or very big consumers. Sub-transmission level क्या है? और sub-transmission system has a higher voltage level than the distribution system. It supplies only bigger loads. It supplies only few substation as compared to the distribution units के बारे में है। लेआउट द पावर नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। दिस इज द जनरेशन है, स्टेप अप हो रहा है आपका और ट्रांसमिशन लेवल तक आ रहे हैं। एक दो तीन तीन जनरेशन है। यहाँ पे हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसके बाद ये ट्रांसमिशन लेवल है आपका 132 है आपका केवी, 220 400 केवी है। वेरी लार्ज कंज्यूमर्स के सप्लाई किया जा सकता है, टाई लाइन टू द अदर ग्रिड। फिर इसके बाद है हमारा स्टेप डाउन होता है ट्रांसफार्मर, प्राइमरी स्टेप डाउन होता है और ये सब ट्रांसमिशन लेवल है 66 केवी का। यहाँ लार्ज कंज्यूमर्स के बारे में जा रहा है, ये लार्ज कंज्यूमर्स के बारे में हम भी देख रहे जा रहा है। फिर यहाँ पे स्टेप डाउन अखर हो रहा है, दिस इज द सब ट्रांसमिशन सेक्शन का है, जहाँ पे आपका ये एक बार और यहाँ पे जो हमारा डाउन हुआ है, इससे क्या होता है, सब ट्रांसमिशन के बाद जब एक बार और हम डाउन करते हैं तो दिस इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी से क्या होता है, मीडियम कंज्यूमर्स जो 33 या 11 के वी होता है, क्योंकि 66 के वी डाउन हुआ है 33 और 11 में। 33 या 11 को फिर से हम क्या करते हैं, 400 या 230 में कन्वर्ट कर देते हैं फॉर द स्मॉल कंज्यूमर्स। दिस इज द पावर सिस्टम नेटवर्क शोइंग द वेरियस वोल्टेजेस लेवल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिस्टम इंटरकनेक्शंस की, अगर हम बात करते हैं, दिस द सिस्टम इंटरकनेक्शन, व्हाट इज द टू और मोर जनरेटिंग स्टेशंस आर इंटरकनेक्टेड बाय टाई लाइन। एडवांटेजेस क्या है? इट इनेबल्स द मैनुअल ट्रांसफार्मर of the energy from the surface zone to depict the zone economically. Second point है lesser overall install capacity to meet the peak demand। ये होता है हमको बहुत ओवरऑल जो कैपेसिटी उसको डाउन करके हम कई सारे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। यूज़र स्टैंड बाय रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी, जब ज़रूरत नहीं है तब भी आप रिजर्व में रख सकते हैं, जब हाई डिमांड होगी तब हम उसको चार्ज कर देंगे, चालू कर देंगे या ऑन कर देंगे जनरेटिंग स्टेशन को। It permits the generation of energy at most efficient and the cheapest station at every time. It reduces the capital cost operating and the cost of energy generation। और एक और मेजर breakdown of the generating system unit is an interconnected system. There is no interruption of power supply। power supply का कोई interruptions नहीं होता है। Interconnection between network is done either by HVAC link to HVDC links, ये होते हैं। और इसके फर्दर है हमारा an interconnected power system covering a major portion of the country's territory or state is called the grid। Different grid make the interconnection through transmission line is called the tie line, perform the regional grid। And when the different regional grid connected interconnected, they form the national grid, northern, western, southern, eastern, northeastern make the Indian grid।
And what is the system voltage and transmission efficiency? Affect the transmission line. What is the system voltage? मटेरियल को बताता है कितना मटेरियल लगेगा. efficiency of the line. Voltage drop in the line. The stability depends upon the system voltage. Consider an n-phase system transmission line. Power to be transmitted phase in watts. B voltage to neutral, I current in each phase, length of the line, area, resistivity है हमारी specific, R is the resistance of each, अल्फा क्या है, current density है, phi power factor है हमारा, cos phi, then power equal to VI cos phi, I को क्या लिख सकते हैं, P divided by V cos phi, A I by अल्फा, करंट डेंसिटी हो गई हमारी P डिवाइड बाई अल्फा V cos फाई. इसको हम चेक कर सकते हैं. I को वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया हमने. द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर गिवन बाई R इक्वल टू रो एल बाई ए. यहाँ से A की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, रो एल अल्फा V cos फाई बाई P. तो पावर लॉस पी एल इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर को यहाँ पुटअप कर दीजिए और I को यहाँ से पुट कर दीजिए P V cos फाई स्क्वायर इंटू 1 बाई पी रो एल अल्फा V cos फाई. इसको हमने पुट कर दिया. ठीक है. इट विल गिव यू अल्फा रो एल पी बाई वी कॉस फाई. यहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं, पी एल पावर लॉस जो है 1 बाई वी है. वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टेंस क्या है आपका आई आर. तो हमारे पास हो जाएगा ए अल्फा एल रो बाई ए. इट विल गिव यू अल्फा रो एल. परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, आई आर डिवाइड बाई वी इंटू 100%. अल्फा रो एल बाई वी इंटू 100. दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप 1 बाई वी. वोल्टेज ऑफ कंडक्टर मटेरियल, रो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, वेट ऑफ द कंडक्टर रिक्वायर्ड. दिस इज द ए एल रो, sorry, this is the sigma, the density. So this is the P L sigma divided by alpha V cos phi. And the efficiency of the transmission line, ये भी हम efficiency की बात करते हैं तो ये भी देख सकते हैं. आउटपुट डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस लॉसेस P डिवाइड बाई P प्लस अल्फा रो एल P डिवाइड बाई V cos phi. यहाँ से हम क्या चेक कर सकते हैं, 1 प्लस अल्फा रो एल बाई V cos phi इनवर्स मीन्स 1 माइनस अल्फा रो एल V cos phi. यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये भी V मानी वोल्टेज और उस पर डिपेंड करता है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे.